In these objective questions, tell me if you have any doubt from first 5 questions. Question number 1 to 5. Any doubt? Question number 2. Okay. Question number 1. So 1, 2, 5. ठीक है? Any other doubt? 1 to 5 के अलावा? You can send me your doubts over here. Till 5 I am asking. Okay. Till 5. Okay. 4. Risha, what is the problem in 4? What you are not able to understand? Risha, you can raise your hand. Huh. Most I understood. I'm sorry. I accidentally sent it. Then realized I solved it. Sorry. So this is isotone, no? So it's normally like number of neutrons are going to be same. Anyway. So let's see the solution of these questions. So first is how we are going to write any, let's say, radioactive reaction is written, then how we are going to write. So I have given you, let's say, this reaction for the discovery of neutron. Then we have said ki there was beryllium, and we are bombarding it by alpha particle helium nucleus. So then it is converting into carbon, and then what is, let's say, emitting, or what is you are able to get. So how we are able to get, let's say we don't know what is this element is and what is the charge and mass over here. So we are going to see what is the total charge over here. 4 plus 2, 6. So over here 6. So that means the charge is going to be 0 over here. Let's say 9 plus 4, 13. Over here it is 12. So what is the value is going to come? 1. So now we have to find which one is the particle which is having charge 0 and mass is equivalent to 1 AMU. So we are going to say, so this is nothing but neutron. This is nothing but neutron. So that's how we have written the balanced nuclear reaction, right? So let's say if I'm going to say 92 uranium 235 plus 0 and 1 is going to form 36 Kr, let's say 92 plus 56 Ba, let's say 141. ठीक है, plus, let's say now we are saying what is going to, let's say, form over here, and let's say whatever. So how you are going to balance it and just identify what is going to come over here. So what is going to come over here? Tell me. 2 neutrons. See what is the total over here? What is the total over here? 236. So you want 236 over here, right? Actually, how much you are having right now? 92 plus 140, 41 kitna hota hai? 233. So you need 3, right? Not 3. What is the charge? 92 and 56 plus 36 is 92. So that is 0. Now you need to see कि कोई ऐसा होता है जिसका चार्ज 0 और 3 एटॉमिक मास हो, नहीं. क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है जिसका 1 होता है, तो 3 into 3 न्यूट्रॉन्स you are, right? Understood? Just by checking the mass difference and right. ठीक है, अब बताओ भाई ये क्वेश्चन हो जाएगा. That's it. What is going to be the answer over here?
न्यूट्रॉन, सबको ये समझ में आ रहा है, राइट? So we will write 3 over here. We will see 3 and here also 3. So okay, 0. Here 6, but here 7. So that's why 1. So 0. So now you can balance all the nuclear reactions. Okay. Anyway, now the second question. The increasing order for the magnitude of E by M ratio. सबके लिए लिख लो E by M ratio. इसका E by M ratio क्या होगा? Right? This is 1.6 into 10 to the power minus, let's say we are going to write 19 divided by what is the electron का mass. So let's say I will write mass of electron. Proton के लिए 1.6 into 10 to the power minus 19, 1837 times mass of electron. Proton का mass क्या है? M proton, that is nothing but 1837 times mass of electron. Neutron 0, 0 में कुछ भी divide करो 0. Alpha particle 1.6 into 10 to the power minus, sorry, not 1.6, 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by 4 times mass of proton, that means 4 into 1837 into mass of electron. Now you can check सबसे ज्यादा कौन होगा, यही है ना, क्योंकि यहाँ पे ये 1837 डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 into 1837, और सबसे कम कौन होगा, 0. 0 सबसे छोटा नंबर है, तो क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, न्यूट्रॉन. बस लोएस्ट टू इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो उल्टा कर लो, एन, अल्फा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन. ओके, सो दिस इज योर आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट नहीं है, समझ में आगे सब क्या करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. पार्टिकल्स इन कैथोड रे हैज सेम चार्ज एंड मास रेशियो. पार्टिकल इन कैथोड रेज कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन लुक लाइक बीटा पार्टिकल. सिंपल. ठीक है, नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 डाउट्स. 6 to 10. Question number 6. Okay. 7. Somebody is saying 8. So what does beta particle contains? Beta particles are having negative charge. Like alpha particles are having 2 positive charge. Beta particles are having 1 unit of negative charge. You have doubt in fourth. Yes, what is your doubt? अभी तो बताएं, isotones होंगे fourth में क्या डाउट है? How many number of neutron are there? 12. आ गया यार ये 12. यहाँ कितने? 12 बस. Sir, in second question, how did the ratio of alpha particle become 2e by m? तो e by m ratio होता है. e by m का मतलब total charge. Total charge is 2e and mass of alpha particle लिखोगे या mass of electron लिख दोगे यहाँ? Mass of alpha particle ना. So then you can say mass of alpha particle is 4 times mass of proton. Then you can say mass of proton is nothing but 1837 times mass of electron, right? इतनी बातें समझ में आ रही हैं? यस. एक मिनट, ये सब पूरा हटा देते हैं. क्लियर. Okay. Now somebody asked the question number 6, 7, and you just have to say what is. You are having doubt in third question. बताओ, third question में doubt है क्या है? हाथ उठाओ. बोलो सर्वेश. हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ सर, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सर रॉन्ग है. भाई ये बताओ, इस x के पहले ये x हुआ होगा, है ना? पहले ये x था, लेट्स से. हाँ. इसमें फिर हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तभी तो x2 माइनस बना होगा. हाँ. अब ये कह रहा है यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे 56.
है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे यहाँ पे 56, तो यहाँ पे कितने होंगे? कितने होंगे? 54। क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, now let's move on to question number 6 to 10 again. Once again just write what in which questions you are having doubt. 6 7 8 के अलावा कोई और है डाउट? राजदीप अभी मैसेज करो ना मुझे, आई विल टेक योर डाउट आफ्टर दैट, है ना। अगर कोई डाउट है तो मैसेज में। 10 सो लेट्स से 10th वाला क्वेश्चन में पूछा गया द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। क्या होता है वेव नंबर? जिसने 10th पूछा है बताओ भाई। आर्यन, व्हाट इज वेव नंबर? अभी राजदीप समझा दिया ना क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे आया 54। व्हाट इज द मीनिंग कि 56 नहीं हो सकता? आर्यन, आर्यन, कैन यू हियर मी आर्यन? व्हाट इज द फॉर्मूला? 1/λ, है ना। क्या है फॉर्मूला? एक मिनट, कहाँ गया आर्यन? तो शर्मागा हुआ, हाथ ही नहीं उठा रहा लड़का। हाँ बोलो। हाँ सर 1/λ। 1/λ, ठीक है। अभी अभी देखो इसमें सबकी यूनिट क्या दिख रही है तुम्हें सारे ऑप्शन में? मीटर। इसका मतलब क्या है? लैम्डा को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर इनवर्स है मतलब। तो लैम्डा को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में। 5000 नैनोमीटर को क्या लिख सकते हैं? सॉरी 500 नैनोमीटर को। 500 नैनोमीटर को क्या लिख सकते हैं? नैनोमीटर इज 10⁻⁹ तो 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये तो हो गई वेवलेंथ लैम्डा। वेव नंबर क्या हो जाएगा? न्यू बार इज 1/λ बस। तो ये लिख दो यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+ हो जाएगा। सो देन व्हाट विल कम? वी कैन राइट 10 इंटू 10⁻⁶। मान लो 10⁻7 को हमने ऐसे तोड़ लिया, 5 से कट किया तो 2 इंटू 10⁻6 बस आंसर। ठीक है। ओके सर। येलो लाइट इज मोर एनर्जेटिक देन। तो हमने आपको बोला था कि E equals to hc/λ where energy is going to decrease if lambda is going to be increased, right? Or opposite, E is going to increase when lambda is going to decrease. So someone is saying कि yellow light is more energetic than. Then what we have to write? Vigour. What we have to write? Vigour. Then what we have to write? The wavelength part कहाँ से start हो रहा है? 30,800 से कहाँ तक जा रहा है? 7,600. That means in this direction the wavelength is increasing or energy is decreasing. So they are saying yellow light is more energetic than, है ना। Yellow light is going to be, है ना, more energetic than orange or red. ठीक है। Now what is the option over here is given? So red. समझ में आ रही है बात? In this direction wavelength is increasing, that means the energy is decreasing. ठीक है। तो इसकी सबसे ज्यादा एनर्जी, फिर इसकी और कम और ऐसे करके। तो येलो की एनर्जी किससे ज्यादा है? ऑरेंज और रेड से ज्यादा है, तो यहाँ रेड ऑप्शन दे। एनी प्रॉब्लम? आगे समझ में? चलो
Question number 7. Now they are saying कि in a time period of 2 seconds the following wave pattern is observed. ठीक है, how many complete cycles are you can see? 1 2 है ना, 3 and 4. ये कह रहा है 2 सेकंड में 4 साइकिल हुई, तो 1 सेकंड में कितनी साइकिल हुई? 2 साइकिल. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? 2 हर्ट्ज. है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आ गया. क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है ड्यूरिंग मलिकन्स ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट पॉसिबल चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप. ऑयल ड्रॉप का चार्ज कितना? चार्ज इज क्वांटाइज, है ना, टोटल चार्ज इज क्वांटाइज विच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस. व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1.6 into 10 to the minus 90. नाउ यू जस्ट टेल मी कि अगर मैं 1 लिखूंगा तो ये मिल जाएगा, तो ये पॉसिबल है. 2 लिखूंगा तो 3.2 मिल जाएगा, 3 लिखूंगा तो 4.8 मिल जाएगा, है ना, n की वैल्यू. क्या ये मुझे मिल सकता है? ये वैल्यू नहीं मिल सकती. सो दिस इज आवर आंसर व्हिच इज नॉट पॉसिबल. ठीक है भाई, और किसी को कोई डाउट यहां तक 10 तक? ठीक है, तो डाउट्स आप बताते जाओ यहाँ पे. राइट, यस बोलो बेटा, क्या डाउट है तुम्हारा? तो सेवेंथ का आंसर क्या है? क्या सेवेंथ का आंसर क्या है? So two waves in the frequency of wave is going to be 2. Okay. What is your doubt, Rajdeep? बोलो. गुड मॉर्निंग सर. सर मुझे ये नहीं समझा आपने 2.4 कैसे लिया into 10 raised to -90 कूल. 1.6 की टेबल आती है, 16 की टेबल. यस सर. 16 की टेबल में 24 आता है. हाँ सॉरी सर, मतलब सर इंटीग्रल मल्टीपल का ये मतलब रहता है टेबल में आने वाले नंबर्स. अरे इंटीजर मल्टीपल 1 2 3 4 किसी से मल्टीप्लाई करो वो वैल्यू आएंगी. ये बताया नहीं इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर मल्टीपल? बताया या नहीं बताया? बताया. कहाँ दिक्कत है? नहीं सर, थोड़ा क्लैरिटी रखो राजदीप, आप ना बहुत कंफ्यूज होते हो, इससे फायदा नहीं होगा. With this approach is going to harm you. And lower your hand. Now question number 11 to 15. तो मेरे हिसाब से कौन कौन से हैं? 15 13 14 already I am getting. So anyone is having any problem in 11 and 12? ठीक है, 11 में भी किसी को प्रॉब्लम है? ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन 11? लेट्स से अर्नब बताओ क्या है प्रॉब्लम, क्या है डाउट, हाथ बताओ. अर्नब फोर्थ. हाँ, Yes, sir. what is your doubt? Sir, in this question, I am getting the answer as 1/2. क्या पूछा गया है? द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ 2000 वेवलेंथ एंड 4000. तो बताओ 2000 की वेवलेंथ जिसमें होगी इसकी एनर्जी ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा होगी? वेवलेंथ बढ़ती है तो एनर्जी, वेवलेंथ बढ़ती है तो एनर्जी कम होती है, तो ऑब्वियसली इसकी ज्यादा होगी, तो 1/2 तो आ ही नहीं सकता. दिस बाय दिस लिखना था. HCy लैम्डा डाल के देखो ना कैसे तुम्हें आ रहा था 2. अच्छा, ओके ओके, यस सर. तो ये क्या हो गया? लैम्डा 2 है लैम्डा.
ठीक है. Yes, sir. Now question number 13. A 1000-watt radio transmitter operates at a frequency of 880 kilocycle per second. That means किलो को लिख लेते हैं 880 into 10 to power 3 cycle per second का मतलब हो गया hertz. How many photons per second does it emit? तो total let's say energy होगी 1000 joule per second. इन्होंने कितना पूछा है per second? Yes, 1000 joule per second. So total energy is 1000. Is nothing but n into energy of photon, right? So over here it is given in 880 kilocycle. ठीक है, तो h nu डाल देंगे 6.63 into 10 to power minus 34 into, है ना, because they have given frequency not the wavelength. So which formula we are going to use? And h into nu. So that is 880 into 10 to power 3. Now you just solve it and you will get the answer. ठीक है, ये 10 to power 3 से 10 to power 3 कट गया. So n is nothing but 10 to power 34 divided by 6.63 into 880. ठीक है, तो अगर पावर के हिसाब से भी देखें तो अगर ये 10 to power 3 है लगभग, है ना, तो आंसर 10 to power 31 के आसपास में आना चाहिए. So you just have to solve it. Not 31, क्योंकि यहाँ पे ये 1 into 31 होगा ना, तो 30 में आना चाहिए. This should be the answer. You can check shall be पीछे आंसर की होती है. You don't have to ask कि सर इसका आंसर क्या आएगा. If you have any problem then ask. ठीक है, पीछे आंसर देख लो कि क्या है. अगर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है then ask. Question number 14. The eye of a certain member of reptile family pass a visual signal to brain when the visual receptor are struck by a photons of wavelength this. तो ये कह रहे हैं कि जब ये वाली लाइट गिरेगी तभी उन्हें कुछ दिखता है, राइट? दे आर पासिंग द सिग्नल, मतलब ना दिस वेवलेंथ पे उन्हें दिखता है. इफ अ टोटल एनर्जी ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड, दे आर सेइंग कि इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, राइट, टू ट्रिप द सिग्नल, मतलब सिग्नल जाना बंद हो जाएगा, राइट? अगर इतनी एनर्जी जाएगी तो फिर सिग्नल जाना बंद हो जाएगा. कुल मिला के क्या कह रहे हैं? कुल मिला के कह रहे हैं कि टोटल एनर्जी इतनी जाएगी इस वेवलेंथ की, तो ये सिग्नल ट्रिप हो जाएगा. ठीक है, और ये कह रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फोटोन दैट मस्ट स्ट्राइक टू द रिसेप्टर. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू राइट 3.15 into 10 to power minus 14 joule. Now that is nothing but n into, if I am going to write let's say hc by lambda, so I can write this 12,420 divided by what is the wavelength in angstrom? 8,900. So obviously it is going to be somewhere 4 by 3, है ना, approximately. I'm just taking some approximation over here. So ये 1.33 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 1.4 मान लें. So you have to calculate electron volt. So electron volt is going to convert into joule. Now you can find what is n is going to be. अच्छा, इसमें exact value निकालनी पड़ेगी क्या? नहीं, पावर से काम चल जाएगा, है ना, पावर से काम चल जाएगा. तो बस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 3.15 into 10 to power minus 14 divided by this is 1.4 into 1.6. कितना आ रहा है वैसे? ये 1.4 ही आ रहा है क्या? वन 1.395 आ रहा है. ठीक है, 1.4 चलेगा. And 1.6, so 16, 160 and 224. So 2.24 into 10 to power minus 19. So what will happen? This is going to go up. So 10 to power 5 में आंसर आने लग जाएगा. So how many photons must be, let's say, striking over here? 10 to power 5. So you can use 1240 divided by 890. Yes. So if you don't want to, let's say, convert this part into angstrom, तो आप क्या लिख सकते हो? 1242 या 1240 divided by 890, that is in nanometer. ये भी चलेगा. Question number 14 में कोई डाउट?
सर हम लोग hc by lambda भी यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, मैंने बोला पर ना थोड़ा आपको लंबा हो पहले। जाएगा आई थिंक। हाँ, बस थोड़ा ओके सर। नहीं, जरूरी नहीं है थोड़ा लंबा हो, किसी को डायरेक्टली वैल्यू याद है तो वो भी लिख सकता है। somebody can write 3.15 into 10 to the minus 14 and I know that it is 19.89 into 10 to the minus 26. lambda मैंने लिख लिया 890 into 10 to the minus 9, that is in meter, right, into n. now ये मेरे लिए बस सॉल्व करना है, पावर का ये में बस, ठीक है, उससे आ जाएगा। सर हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एनर्जी हमें जूल में दिया ना, तो कन्वर्ट तो हम करके। बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अच्छा, मतलब अगर एनर्जी हम लोग पूछे तब कन्वर्ट करेंगे, वो लंबा नहीं होगा कन्वर्ट करने से? क्योंकि ये वैल्यू 1.6 into 10 to the minus 19 है, तो आप इसमें कन्वर्ट कर लो। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाला, हाँ। which came around 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उस 1.4 इलेक्ट्रॉन को जूल में कन्वर्ट कर लिया, यही तो किया है यहाँ। ये बात समझ में अच्छा, आई कि उसी आपको को नहीं? कन्वर्ट किया। ओके। हाँ, ये नहीं बात समझ में आई? तो फ्रेश फ्रेश लेके अच्छा था, दूर दूर। हाँ सर, वो नहीं समझा था। See what is happening here. Energy, total energy is given as 3.15 into 10 to the minus 14 joule. Let's say somebody is for calculating the energy of photon in electron volt, which is 124, let's say 20 divided by 8900. So this we have converted into angstrom. Nanometer we have converted into angstrom. So this value is coming around 1.4 electron volt. Now this is 1.4 electron volt. Here unit is joule. So what you are going to do, you will convert this into joule, or you will convert this into electron volt. So this is better, you know. So we are writing 1.4 into 10 to into 1.6 into 10 to the minus 19. So this is the energy of one photon. What is the formula? Formula is total energy is nothing but n into energy of photon. Now you will write this value over here and solve for n. Bas. Okay. Yes sir. Now question number 15. So they are saying a certain dye absorbs a light of wavelength this and then emits fluorescent light of this. Assuming that under given condition 50% of absorbed energy is re-emitted out as fluorescence, calculate the ratio of quanta emitted to number of quanta absorbed. ठीक है, तो ये कह रहे हैं, देखो भाई, एक एक ये डाई है मैच, है ना, इस पे कुछ लाइट गिर रही है, तो ये लाइट, ये डाई है, तो इस पे ये लाइट, जितनी भी लाइट गिर रही है वो हो गई इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब। क्या होगी एनर्जी एब्जॉर्ब? टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब इज नथिंग बट फोटोन ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब इनटू एनर्जी ऑफ फोटोन, है ना, लेट्स से एब्जॉर्ब, करेक्ट, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं जब ये इसने एब्जॉर्ब की तो ये कुछ लाइट इमिट भी कर रहा है, बट दिस लाइट इज ओनली 50% ऑफ द एब्जॉर्ब्ड लाइट, है ना, क्या है, 50% है, मतलब आधी है। वी कैन राइट ई इमिटेड क्या हो जाएगा, is nothing but n emitted into energy of photon emitted, right? What is the ratio? अगर इन दोनों का रेशियो देखेंगे तो क्या आ जाएगा, another equation is given as कि E absorbed, है ना, या फिर हम लिख सकते हैं E emitted is 50% of E absorbed। 50% का मतलब कितना हुआ, 50 डिवाइड बाई 100, है ना, परसेंटेज का मतलब क्या है, आउट ऑफ 100 into E absorbed. So what is going to be, you are going to get 1/2, or you can say E absorbed is nothing but 2 times energy emitted, right? This 2 is going to be go over here. तो ये पता है, बस इन दोनों को डिवाइड कर लो, तो एब्जॉर्ब और इमिटेड काट सकते हैं, which is going to be, है ना, 2 वैल्यू। अब यहाँ पे Na और Ne का हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ क्वांटा इमिटेड, उल्टा पूछा है, सॉरी, ठीक है, तो उल्टा रेशियो ले लेते हैं, हमसे Ne by Na पूछा है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हम इसको ऊपर ले लेते हैं,
Energy emitted is Ne, energy of photon E emitted divided by energy of absorbed and A, energy of photon absorbed. सही है ना? इतनी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत? Now this value is 1/2 Ne by Na. अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? राइट, तो इसको मैं थोड़ा सा फिर से हटा दे रहा हूँ. So what we are going to write? Energy emitted Ne, energy of photon E emitted. ये total energy emitted है. And this is energy absorbed is nothing but Na, energy of photon absorbed. This value we know this is 1/2. तो क्या हो गया? 1/2 equals to Ne by Na. अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? Hc by lambda. So lambda emitted. यहाँ पे क्या लिखेंगे? Hc by lambda. Absorbed. ये Hc कट गया. लैम्डा ही ऊपर पहुंच जाएगा. या फिर आप यहाँ लिख सकते हो, है ना, 1/2 equals to Ne by Na into lambda A by lambda E. और यू कैन राइट, है ना, ये क्या होगा? ये इधर चला जाएगा और ये इधर नीचे चला जाएगा. तो Ne by Na is nothing but 2 lambda E divided by 2 times lambda A. बस. क्या है lambda E? इमिटेड की वेवलेंथ दे रखी है फ्लोरोसेंट लाइट, दैट इज 5000. फिर यहाँ पे क्या दे रखा है? 4500. So this is 2 into 4500 is 9000. So that is nothing but 5/9. 5/9 is nothing but 0.55. So answer is A. किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ बोलो राजदीप, क्या डाउट है? Sir, I got 0.6. Can I consider it 0.55 as answer? ये डाउट है तुम्हारे? सर नहीं सर, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आया. कोई बात नहीं ना, यहाँ ऑप्शन क्या दे रखा है? 4 में तुम्हें बताने हैं. What is the question is saying? मल्टीपल चॉइस का मतलब क्या होता है? 1 correct out of 4. तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे तुम्हारे आंसर से कौन ज्यादा मैच कर रहा है? सर और मुझे वो ऊपर का क्वेश्चन पहले ही बताओ तुम्हें दिख रहा है? यस सर. तो फिर क्यों ऐसे क्वेश्चन पूछते हो? मैं भगा दूं तुम्हें? नहीं सर ऐसा नहीं. मैं मना कर चुका हूँ ना, अभी मैं तुम्हें डांट रहा हूँ. ये डाउट है कि सर मेरे को इतना आया, अभी इनमें 4 में मुझे देखना है, जो मेरा मोर एक्यूरेट होगा वो मैं डाल दूंगा यहाँ पे आंसर. और पहली बात तो 5/9 की वैल्यू 0.6 होती नहीं है, तुमने कैलकुलेट नहीं करी ढंग से. और ये माइक ऑन करूं? हाँ सर. हाँ, 5/9 की वैल्यू कितनी होती है? डिवाइड करो. नहीं सर, मुझे रेशियो कुछ और आया. 5/3 आई मीन सॉरी 3/5 आया है सर. कैसे आ सकता है 3/5? सर मैंने पहले एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी को x पकड़ा और जो एनर्जी ऑब्जॉर्ब थी वो x/2 हो गई. तो फिर सर एनर्जी ऑब्जॉर्ब x/2 हो गई. यस सर, क्योंकि इट वाज 50% ऑफ x नो. सो तो फिर वो x और x क्या है? x वो एनर्जी ऑब्जॉर्ब्ड. सो सर एनर्जी ऑब्जॉर्ब x है और x/2 भी एनर्जी ऑब्जॉर्ब है, राइट? नहीं, x/2 एनर्जी एमिटेड है. Right, this is what I'm saying. You don't know what you are saying. है ना, रिकॉर्डिंग में जाके देखना कि तुमने क्या बोला था. फिर क्या किया? सर फिर दोनों को साइमल्ट आई मीन x की वैल्यू डाली n1 into 44.2 अपॉन n2 into 13. 44.2 कहाँ से आया? सर वो मैंने एनर्जी ऑफ प्रोटॉन सेपरेटली आई मीन फोटोन सेपरेटली निकाल ली थी. कैसे? hc/λ. ओके, तो तुमने वहां पे अप्रोक्सीमेशन लिया. यस सर. हाँ, फिर उनको अप्रोक्सीमेशन का रेशियो लिया तो आएगा ना गलत.
आएगा या नहीं आएगा गलत? यस किसी ने आपको ये नहीं बताया जब भी रेशियो होते हैं तो सबसे बाद में काटते हैं? किसी ने ये बात बताई है आज तक या नहीं आपको कि जब भी कभी रेशियो होता है तो बात अल्टीमेटली चीजें कटने वाली हैं, तो क्यों कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं? सॉरी सर। सॉरी नहीं है, सीखो। मतलब कितनी बार सॉरी बोलोगे? व्हाट यू हैव टू लर्न इज, और अदर स्टूडेंट्स आल्सो, कि जब भाई यहाँ पे ये बात समझ लो, जब भी कैलकुलेशन ज्यादा है और आपको रेशियो वगैरह पूछे गए तो क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, बाद में जाकर डिवाइड करना है, फिर वो डबल काम हो रहा है। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने काट दिया, मैंने निकाला एच सी वाई लेमडा की वैल्यू। नहीं सर। ठीक है, तो ये सीखना है। और फिर कोई बात नहीं, तुमसे तुम्हारा जो भी आंसर आ रहा है, मैं जो यहाँ समझा रहा हूँ वो तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। तो फिर इसमें डाउट कहाँ आ सकता है कि जो मैंने यहाँ सॉल्व किया अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो तुम्हें डाउट क्यों आया? यू मस्ट बी अंडरस्टूड दिस कि ये अप्रोच मैंने जो की थी उसमें कोई मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया और सर यहाँ एग्जैक्ट बता रहे हैं वैल्यू, मैंने कहीं अप्रोक्सीमेशन लिया है यहाँ पे? हाँ या ना? ना। नहीं लिया है ना, तो फिर कहाँ डाउट है? जहां अप्रोक्सीमेशन होता है वहां मैं बोल देता हूँ कि अप्रोक्सीमेट ये आंसर आएगा। Do you want me to ignore you? नो सर। नहीं ना, तो फिर उस तरह के काम भी करो ना, एक्शन। आप बार बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो जिससे कभी कभी लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाना चाहिए था। अब इसमें ये आंसर क्या था कि मेरा 0.6 आ रहा है और सर यहाँ 0.55 है, तो बताओ मैं क्या करूं? अब ये 4 ऑप्शन है, इनमें देख लो भाई क्या करना है। Yes, somebody is saying question number 12. What is the answer of question number 12? भाई क्या है आंसर? देखो तुम्हारा आंसर मैच नहीं हो रहा है, क्या है दिक्कत? What is your problem? हाथ उठाओ। Yes. सर मेरा कोई डाउट नहीं। अच्छा। गौरांश। Yes, sir. Actually, my answer is not matching with any of the options. So, how to do it? Can you मैच please? ही नहीं हो रहा है किसी से? हाँ सर, मतलब दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। दिक्कत आ रही है? चलो भाई देख लेते हैं क्या होता है एनर्जी। क्या पूछा है इन्होंने? वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लैम्डा पूछा है। यस सर। क्या होता है? सर लैम्ब्डा इज लैम्डा कैसे निकालेंगे? आप फ्रीक्वेंसी दे रखी, फॉर्मूला क्या है? सर सी बाई एफ। सर सी बाई एफ। सी वाई एफ। तो देखो न्यू, तो न्यू इक्वल्स टू क्या होता है? सी वाई लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल्स टू सी वाई न्यू या सी एफ, बाई न्यू। राइट? यस सर। अब देख लो, आपको सी किस में दे रखा है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड पूरा लिखना है। न्यू किस में दे रखा है? किलो हर्ट्ज में। किलो हर्ट्ज का मतलब कितना हुआ? 5090। किलो का मतलब कितना हुआ? 10⁻3। हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ? पर सेकंड, 1/सेकंड डाल दो यहाँ पे। 5090 को फॉर अप्रोक्सीमेशन आई एम राइटिंग 5000 जस्ट टू गेट द विच वन इज गोइंग टू बी क्लोजेस्ट वैल्यू। सो 5000 इंटू 10⁻3, ठीक है, 1/सेकंड तो कट गया ये। अब जो भी आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। ये तो हो गया 10⁻6, तो ये हो गया 300 डिवाइड बाई 5, तो आंसर आया 60। अब ये 60 से ऊपर होगा या नीचे होगा? तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 5000 से बड़ा है, तो वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी? 60 से कम आएगी। 60 से कम कौन सा होगा आंसर? तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आया? क्योंकि तुमने किलो हर्ट्ज को कन्वर्ट नहीं किया। हाँ सर, यही। हाँ, तो मैं यही बोलता हूँ, देखो ना पहले यूनिट। अभी 10th नहीं है कि बस सब न्यूमेरिकल वैल्यू से ही काम चल जाएगा, हर्ट्ज या फिर यूनिट नहीं देखनी पड़ेगी। लेकिन सर हम लोग 5090 भी तो ले सकते थे ना 5000 की जगह। तो लो ना, मना किसने किया है? मैंने
मैंने इस तरह से कर लिया, आप उस तरह से कर लो, किसी ने मना थोड़ा ना किया कि 5 मतलब तो भी आंसर सेम आ जाएगा सर, राइट? और क्यों और नहीं आएगा? कैलकुलेशन से आंसर सेम नहीं आता है। नहीं सर, आता है ना, आता है। मेरे को नहीं करनी थी इतनी मेहनत कि मैं एक एक वैल्यू निकालूं। ठीक है सर। मैंने यहाँ पे सोचा कि देखो ये 60 आ रहा है, अभी इससे बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, बताओ 60 के आसपास और कम, आंसर यही तो है। हाँ सर, हाँ। तो यू नीड टू बी स्मार्ट ऑल्सो कि भाई कैलकुलेशन ना करके भी आंसर निकालना है। श्योर सर। इट विल टेक टाइम ना। यस सर। आप बैठ के बढ़िया अच्छी तरह से पूरी कैलकुलेशन कर लो, फिर उसके बाद आप आंसर निकालो, उससे फायदा नहीं है ना। यू जस्ट हैव टू जज आउट ऑफ 4 which one is more accurate or which one is more correct. यस सर। यस सर। In question number 15, they have given only 50% of the absorbed energy is re-emitted out. So half of absorbed energy is emitted. So sir, it would be 2 times the emitted energy into absorbed energy, right? Or it would be 2 times absorbed energy. I am saying you are having 50% of my value, my energy, let's say money. So how much money you are having? Double of my energy or half of my money? Let's say I am having 100 Sir, rupees. exactly. I'm saying yes, it would be 2 times the energy emitted, right? Not 2 times energy absorbed. तो वही तो हमने लिखा हुआ है. Energy absorbed is 2 times energy emitted. What was the ratio? E by EA लिखा था ना हमने. Yes. तो क्या होगा E by EA? ये इधर गया, ये इधर गया, तो 1/2 नहीं आएगा. Yes, sir. है ना? सही है. Yes. बोलो. हेलो सर. सर इन द 12th वन आपने 5090 के 5000 लिया, तो फ्रैक्शन फिर बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर आपने थोड़ा कम लिया है. क्या डाउट क्या है? डाउट क्या है? सर आई वाज गेटिंग द आंसर है 60.5. सो आपने 5090 की जगह 5000 लिया था ना, तो डिनोमिनेटर थोड़ा कम हो गया, फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा ना 60 से. भाई ये बताओ 300 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? बस इतना बताओ. ये 5000 से आया ना 60. अब बड़ा और छोटा इसके बाद देखेंगे ना, इस वैल्यू पे. यस सर. इस पे देखेंगे ना. ये तो एग्जैक्टली पता है ना मैं ये 60 है. यस सर. अब मैंने ये क्या किया, ये बढ़ा दिया, तो ये वैल्यू क्या होगी? अगर मैं मान लो यहाँ 6 लिख दूं तो कितना आएगा? 50 आएगा या 70 आएगा? 50 आएगा. 50 सर. 50 आ रहा है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं वैल्यू नीचे से बढ़ा रहा हूँ, ये वैल्यू 60 से 50 की तरफ जा रही है. अब बताओ तुम्हारा 60.5 कैसे आ गया? होल्ड फॉर 1 सेकेंड. ओके, सो लेट्स से मैं 15th क्वेश्चन फिर से बता दे रहा हूँ. राइट, यस आई एम स्पीकिंग. यस, 15th क्वेश्चन मैं फिर से बता दे रहा हूँ.
क्या कह रहे हैं ये, है ना? देयर इज अ डाई, लेट्स से देयर इज अ डाई जिसपे कुछ एनर्जी गिर रही है, दैट इज एब्जॉर्बिंग, है ना? और फिर उसके बाद उसकी 50% एनर्जी इमिट हो रही है, सो दिस इज एनर्जी इमिटेड। ठीक है, हमने ये ए और ई ऐसे लिख लिया ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट? ए फॉर एब्जॉर्ब, ई फॉर इमिटेड। Now what is going to be EA? EA is nothing but NA, total number of photon absorbed into energy of photon absorbed, right? What is going to be EE? Energy emitted, that is number of photons are going to emitted into energy of photon emitted. Now what is the relation between these two if we are going to divide? So the relation is energy emitted is nothing but 50% of energy absorbed. So EE equals to 1 by 2 EA, or EE divided by EA is nothing but 1 by 2. So we know this part. Now we are going to divide these two. So EE divided by EA is nothing but NE divided by NA into energy of photon emitted divided by energy of photon absorbed. This value is 1 by 2. Now we know this value. What is HC by lambda E divided by HC by lambda A? HC कट गया, ये lambda A सबसे ऊपर पहुंचेगा. So what you are going to get? 1 by 2 equals to energy emitted divided by energy absorbed into lambda A divided by lambda E. Or you are going to write, let's say over here ये इधर जाएगा और ये नीचे जाएगा. So NE by NA is nothing but lambda E divided by 2 times lambda A. अब value रख दो. Lambda E is 5000, lambda A is 4500. So 2 into 4500. So this is nothing but 5000 by 9000. So that is nothing but 5 by 9. Or if you are going to write in decimal, then this is 0.55. समझ में आ गया? किसी को डाउट? क्या किया मैंने अभी? समझना है, कॉपी नहीं करना है बैठ के, फिर से सॉल्व करना है, देन यू विल लर्न. कई लोग क्या करते हैं, वो कॉपी करने में बिलीव करते हैं कि चलो मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन. आप देखो कि मैंने क्या किया यहाँ पे. समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया ना सबको? नाउ यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ कि मैंने कैसे कैसे किया था, क्या क्या स्टेप किया था. जहां आप भूल जाओगे वहां पे आपके पास रिकॉर्डिंग है. ठीक है, टिल 15 कोई डाउट नहीं, राइट? चलते हैं हम सब्जेक्टिव. तो ये सब्जेक्टिव में क्या है कि सब्जेक्टिव में उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन दे रखे थे. ओके, सो यू ओनली हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 to 4. ऑब्वियसली स्पेक्ट्रम तो भी पढ़ाया नहीं है, तो उसके तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते थे, राइट? सो वी मिस दिस, है ना? ये बाद में आना चाहिए था, बोर के बाद, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. एनीवे, so in first 4 questions, any doubt? Question number 1 to 4. Say your doubts. 4 सबको 4 चाहिए. ओके, 4 2 any other question? 2 4 3 भी चाहिए. 3 में क्या डाउट है? 1 नैनो सेकंड बोल रहे हैं, है ना? एक पल्स में देखो ये क्या कह रहा है. यूवी लेजर प्रोड्यूसेस अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा दे रखा है. इन ए पल्स whose duration is this, and they are saying that the laser produces this much energy per pulse. एक पल्स में कितनी एनर्जी निकल रही है? टोटल एनर्जी दिस. हाउ मेनी फोटॉन्स आर प्रोड्यूस्ड पर पल्स? ठीक है, राइट? तो यहाँ से फोटोन निकाल लोगे. पावर डिलीवर्ड, पावर किसमें होता है हमेशा? वॉट पर सेकंड में. तो आप देखोगे 10⁻⁹ सेकंड में कितनी एनर्जी दी गई? 0.376 जूल. 1 सेकंड में कितनी दी जाएगी? 0.376 इंटू 10⁹ जूल. सही है ना? तो ये हो जाएगा जूल पर सेकंड, विच इज गोइंग टू बी पावर 376 इंटू 10⁻⁶.
जूल पर सेकेंड, सो किलो मेगावाट, 376 मेगावाट। थर्ड में कुछ था ही नहीं। आगे वही समझ में जिन लोगों ने पूछा था, देन से यस। क्या है वही डाउट, क्या पूछा किसी ने? सर पावर इज ओनली वॉट यू मिस्टेकनली वॉट पर सेकेंड। मैंने जूल पर सेकेंड लिखा है, कहीं पे भी वॉट पर सेकेंड मुझे तो नहीं दिख रहा। अच्छा इधर, ओके, दैट इज वॉट। हाँ ठीक है। ना भाई और कोई क्वेश्चन किसी को? यस, व्हाट इज योर डाउट? रेज योर हैंड। कहाँ दिक्कत आ रही है? हाँ सर मुझे वो पल्स नहीं समझ में आ रहा था, पल्स क्या है? पल्स मतलब सिग्नल काइंड ऑफ ए थिंग, सिग्नल। वो ये कह रहे हैं कि एक लेजर जो होती है ना, ऐसे एक बार ऐसे आपने मान लो प्रोड्यूस की, ठीक है? हाँ सर। So let's say if you are producing, then whatever the one cycle is, that is pulse. ओके सर। और सर वन नैनो सेकेंड और सेकेंड का रिलेशन क्या है? नैनो क्या होता है? नैनोमीटर पढ़ा है ना? यस सर। क्या होता है नैनो? 10⁻⁻⁹। तो फिर नैनो सेकंड क्या हो जाएगा? ओके सर, गॉट इट। ठीक है, जैसे अगर हाँ मैंने सर। ये बोला हुआ है, ये आपको पता याद रखना है, ठीक है सबको। क्या याद रखना है? दिस इज कॉमन, लेट्स से अंडरस्टैंडिंग कि कहीं पे के लिखा है, then it is 10⁻⁶, सॉरी 10⁻3। कहीं पे कैपिटल एम मेगा लिखा हुआ है, राइट, 10⁻6। ठीक है, गीगा लिखा हुआ है 10⁻9, स्मॉल एम लिखा हुआ है 10⁻³ मिलीमीटर, है ना? कहीं पे लिखा 1 मिलीमीटर। इस एम का मतलब क्या है? 10⁻³ मीटर, हो गया ना? कहीं पे आपको माइक्रो लिखा है, देन 10⁻6। कहीं पे नैनो लिखा हुआ है 10⁻9। कहीं पे पिको लिखा हुआ है, देन 10⁻12। फर्मी लिखा हुआ है ना, F 10⁻15। These are the value you have to remember. तो कहीं पे लिखा है मैंने 1 फर्मी सेकेंड, ऐसे लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? 10⁻15 सेकेंड। Sir, the power was in negative and then you rotated it as +6. तो भाई 10⁻⁹ सेकेंड में इतनी एनर्जी देता है, तो 1 सेकेंड में कितनी देगा? ऋषिका, क्या डाउट है? हाथ उठाओ। बोलो भाई, क्या डाउट है? Sir, it was like a nanosecond is 10 raised to -9 second, which is it gives out 0.376 joules. Right. So where did we use the wavelength? Where you use it? Where did we use it? The wavelength. वेवलेंथ नहीं, सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। वेवलेंथ तो आप वेवलेंथ तो पूछा ही नहीं है। So sir, like the information is not required at all. अरे वेवलेंथ का पहले पार्ट में यूज है ना, हाउ मेनी फोटॉन्स, ये अभी भी समझाना पड़ेगा। हाउ मेनी फोटॉन्स कैसे निकालेंगे? टोटल एनर्जी इज नथिंग बट, तो यहाँ पे वेवलेंथ आएगी ना। Yes. आपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है बैठ के? Yes sir, but I was confused with the nanosecond and pulse, like the. अच्छा भाई, अच्छा बताओ, अभी जब मैंने समझाया तो मैंने क्या समझाया आपको? What I have told you. Yes I sir, am I got it. calculating power, right? I am calculating power, right? Yes, yes. तो मैं पावर बता रहा हूँ।
और ये पावर इन्होंने एक्चुअली में पर पल्स पूछा है, सॉरी, दे आर नॉट आस्किंग पर सेकेंड, दे आर आस्किंग पर पल्स। तो पर पल्स में कितनी हो जाएगी, 0.376 वॉट ही हो जाएगी, फिर तो नहीं चेंज होगी। ओके, एक पल्स में कितनी पावर डिलीवर हुई, दैट इज 0.2. जूल पर सेकेंड। हाँ, तो ये पर पल्स में इतना ही आएगा, ये डोंट हैव टू चेंज दैट। अगर इस क्वेश्चन में पर पल्स की जगह पर सेकेंड होता देन वी वुड हैव कन्वर्टेड। Okay, so for the first part of the question, we require the wavelength. फर्स्ट पार्ट में Yes, आप, sir, got it. ठीक है। अब चलते हैं, जो डाउट्स हैं उन पे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बात। पहली बात तो ये, क्वेश्चन नंबर 2 में करा चुका हूँ कि जब एफिशिएंसी 15%, 12% वाला एग्जांपल कराया था, दैट मींस द होल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू विजिबल, लेट्स से लाइट, ओनली द 15% ऑफ दिस एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू विजिबल लाइट, ठीक है। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी इज गोइंग टू बी 15% ऑफ 75 वॉट, that is 75 joule per second, correct na, which is nothing but n into energy of photon. Now you just solve it, you know the wavelength, energy of photon, then you can get the answer। टू में किसी को डाउट है, जिन्होंने क्वेश्चन पूछे थे 2, कैन दे रिस्पॉन्ड लाइक आंसर आज हो जाएगा। वेद हो जाएगा भाई, वेद, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देते हैं। तो ये ऐसा ही कल एक क्वेश्चन मैंने नोट में समझाया था, आयोडीन मॉलिक्यूल डिसोसिएट इनटू एटम आफ्टर एब्जॉर्बिंग दिस मच एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि लेट्स से एक आयोडीन का ये मॉलिक्यूल है और इस पे ये एनर्जी गिर रही है, एंड दैट एनर्जी इज ऑफ 4500 एंगस्ट्रॉम, एंड दे आर सेइंग कि ये 2 एटम्स में ऐसे टूट जाएगा, सो दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक, ठीक है, बिटवीन दीज आयोडीन एटम। लेट्स if one quantum of radiation is absorbed by each molecule, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल एक क्वांटम ही एब्जॉर्ब कर रहा है, एक फोटोन ही एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो मतलब वो जो 4500 एंगस्ट्रॉम से जितनी भी एनर्जी आ रही है वो सफिशिएंट है इसको तोड़ने में, ठीक है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन आयोडीन एटम एंड बॉन्ड एनर्जी इज गिवन। तो बॉन्ड एनर्जी क्या कह रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी कह रहे हैं 240 है किलोजूल पर मॉलिक्यूल, कैन बी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 240 डिवाइड बाय 96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल, मतलब इतनी एनर्जी आपको चाहिए, 48 से काटेंगे तो ये 2.5। बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, दिस इज बॉन्ड एनर्जी, राइट, which is given as 240 kilojoule per mole and we have converted into electron volt per molecule. How much energy is required, 2.5 electron volt, ठीक है। इतनी दे दोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, इससे कम दोगे तो नहीं टूटेगा, इससे ज्यादा दोगे तो वो एनर्जी जो बच जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, बिकॉज एनर्जी इज गोइंग टू कंजर्व, है ना। मान लो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए 100 जूल की एनर्जी चाहिए, आपने 200 जूल एनर्जी दी, तो 100 में तो ये बॉन्ड टूट गए, बाकी 100 नेक्स्ट जो 100 है ना, टोटल 200 है ना, बाकी जो नेक्स्ट 100 है उनसे क्या होगा, उनसे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, इन दोनों को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, हाउ मच एनर्जी वी हैव, लेट्स से how much energy is going to be let's say incident over here, so we are going to say energy of photon is nothing but 12400 divided by 4500 angstrom, so this is going to be in electron volt, कितना हो जाएगा, let's say, so if we are going to take some approximation then ये 15 से कट कर दो तो ये हो जाएगा कितना, 3 and ये हो जाएगा 8 and then we are going to say 8.2
2.226 लेट्स से और 27, फिर 3 से फिर कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट, ये हो जाएगा कितना 7 और लेट्स से 8 है ना, 2.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए थी एंड यू हैव गिवन 2.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या लिखेंगे? टोटल एनर्जी इंसिडेंट is nothing but bond energy plus and kinetic energy of both atom, क्योंकि एक molecule will give 2 atoms. How much energy we have, let's say that is falling 2.78 electron volt. How much bond energy is there? 2.5 electron volt. So kinetic energy of 2 atom hai, so 2 times kinetic energy. Why? Because in this question they are asking kinetic energy of one iodine atom, right? So they are not asking total kinetic energy. They are asking kinetic energy of one iodine atom. So this is दोनों का है तो 2 into kinetic energy लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं total kinetic energy, which is going to be of, है ना, 2 atoms. तो एक एटम की काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे? 2 into, let's say ये काइनेटिक एनर्जी को हम निकालना चाहते हैं, राइट? काइनेटिक एनर्जी पर एटम, बस हो गया ये 0.28 divided by 2 is 0.14 electron volt, and then you can say 0.14 into 1.6 into 10 to the minus 90, तो ये कितना हो गया 14 और ये 10 to the minus 21 और ये हो जाएगा 22.4 into 10 to the minus 21 जूल, और you can say 22.4 into 2.24 into 10 to the minus 20। देख लो आंसर आ रहा है, ठीक है? तो ये आ गया आंसर, समझ आ गया सबको? किसी को कोई दिक्कत? फोर्थ क्वेश्चन में 2.75 है क्या? ठीक है, उसको कोई नहीं, मैंने यहाँ पे 1242400 से किया है, इसमें मतलब आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आ सकता है, तो आंसर में थोड़ा अप्रोक्सीमेशन आता है, आ सकता है, क्योंकि यहाँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है, सॉरी यहाँ पे 6 आना चाहिए था, 2.76 है ना, 18 होगा प्लीज। तो 13, ठीक है? तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए फिर आपको HC/λ करके करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ तक भाई आज के डिस्कशन में कोई डाउट रह गया किसी को? समझ में आ गया सबको? प्रॉब्लम किसी को कोई? नाउ यू कैन लीव इफ यू डोंट हैव एनी डाउट, ओके? क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं कि वी कैन स्टार्ट समथिंग, तो you can leave and somebody whoever is having doubt they can ask. Yes. ऐसे अप्रोक्सीमेशंस लेना चलेगा क्या? क्योंकि वैसे जी एडवांस में तो ये रहता है ना सब्जेक्टिव टाइप आंसर, मतलब इंटीग्रल आंसर डालना एडवांस में, मेंस में भी रहता तो है सर, तो उसमें एग्जैक्ट वैल्यू डालना पड़ेगा कि? तब एग्जैक्ट वैल्यू डाल देंगे, देख लेंगे ना क्वेश्चन कैसा है। ओके, अगर वो कह रहा है इंटीजर टाइप है तो एग्जैक्ट वैल्यू डाल के देखेंगे। यस सर, ये सिर्फ अप्रोक्सीमेशन हम लोग सिर्फ ये जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा तब आसान हो जाए, तो उसमें बाकी सारे ऑप्शन हमें डिस्कार्ड करने हैं और एक मोस्ट करेक्ट आंसर निकालना है। ओके, ठीक है? यस सर। बोलो सुहानी। सर ऑब्जेक्टिव वाला 14th क्वेश्चन है ना, उसमें मैंने वो सॉल्व किया है HC/λ से, पर ना मेरा आंसर एकदम क्लोज आया है, पर वो जो इंडाइसेस में मुझे वो 10⁻1 आ रहा है, 10⁻5 के बजाय।
वो देख लो कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो गई, अभी मैंने समझाया तो समझ में आ गया था क्या करना है, हाँ सर समझ में तो तो आ रहा है, दोबारा पर मैंने वही बहुत ट्राई करना है दोबारा से। बहुत बार ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा है वो। कोई बात नहीं, अभी कैलकुलेशन है ना, उसमें कैलकुलेशन भी की है, जस्ट चेक, है ना। ये मैं जब ये लेक्चर रिकॉर्ड अपलोड करूंगा ना, चेक कि कहाँ पे क्या गलत किया आपने, कोई पावर का गलत कट करी होगी, ठीक है सर, है ना। ओके, थैंक यू। हाँ बोलो। Sir, in question 2, when I calculated number of photons, I got power in negative. तो यार ये कैलकुलेशन थोड़ी ना सिखाई जा सकती कि भाई 2 into 2 4 होता है, देखो कैसे आया, यू वुड हैव डन समथिंग रॉन्ग, Okay, sir, I will check. है ना। कैलकुलेशन थोड़ी ना मैं सिखाऊंगा बैठ के कि भाई भाई ये देखो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये पावर। आई हैव गिवन यू सम आइडिया कि भाई ऐसे है, अब कैलकुलेशन में ही गलतियां कर रहे हो तो क्या कर सकते हैं। यस बोलो। Souvik, they are asking per pulse, है ना, they are asking power is per pulse. If they are asking per second, then your answer is going to be, because you are converting that in one pulse in nanosecond to second, तो वो वाट में आएगा, वो मैं पहले बता रहा था, but they are asking per pulse. हेलो सर। Arya, check the yesterday's lecture. I have done this. किलोजूल मोल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल मॉलिक्यूल कैसे निकाला है। यस हाँ। हेलो सर। सर आंसर की कौन से पेज नंबर पे आपको पता है? अरे नीचे देखते जाओ ना, कौन से पेज नंबर की जरूरत क्या है, कैन यू स्क्रॉल डाउन नहीं होगा, इतने आलसी हो तुम। नहीं सर, मैं ढूंढ रहा था, काफी नीचे तक मिला नहीं मेरे को, दूसरे और भी उसके थे। मिल गया 83। ओके सर, थैंक यू। कैसे कैसे डाउट लाते हो यार तुम लोग, आंसर की नहीं मिल रहा है मुझे। चलो बाय। यस यस, क्या है डाउट, बोलो भाई, यश को क्या डाउट है। हेलो सर। हाँ सर आपने लास्ट क्लास में हाइड्रोजन के 5 एनर्जी शेल बताए थे जिसमें हाँ। इलेक्ट्रॉन जा सकता है, बट जब तक लोअर ऑर्बिट फिल नहीं होते तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाता है, तो वो अरे जाएगा। भाई सब में एक ही इलेक्ट्रॉन है, फिलिंग तो बाद में आएगी। when you are, let's say some energy is going to, let's say absorbed by electron, तो क्या करेगा, वो ऊपर जाएगा, यस सर। एक्साइट होगा, तो सर वो ऊपर जाके वापस नीचे आएगा। फिर नीचे आएगा, बिल्कुल। ओके सर।